चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुष्ये नमः। वृन्दाय तुलसीदेवाय प्रिये केशवास्य च कृष्णभक्तिप्रददेवे सत्यवते नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Madhuri Prabhu told me to speak about Nityananda Prabhu. And my English no good, sorry, but I don't know about Nityananda Prabhu. I never see himself, but I never see. But I know that our Guru Varga, all Vaishnavas, have mercy of Nityananda Prabhu. And I also want to have mercy of himself. Yes, because he very important man. As associate of Chaitanya Mahaprabhu, yes. Nityananda Prabhu, he Saint Balaram. When Krishna came, from Krishna came Balaram, and Balaram he first avatar of Krishna. He same Krishna, but he have color of body, white color. Yes, because he Nitya Das of Krishna. And Nityananda Prabhu also came in Gaura Lila, same Das of Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu are very merciful persons. They they give so many mercy of all Jews. And from Krishna come Balaram Prabhu. From Balaram Prabhu came Mahasankarsana and Anantashesh and Garbhodakshaya Vishnu, Kshirodakshaya Vishnu and Garbhodakshaya, Kshirodakshaya and Karanagashaya Vishnu, yes. And he great avatar. And Nityananda Prabhu he came to Navadvip and meeting with Chaitanya Mahaprabhu. And he preaching holy name and go preaching with Haridas Thakur. And he Namacharya also. Namacharya Haridas Thakur and Nityananda Prabhu also Namacharya. Yes, and
Jagai Madhai, they have mercy from Chaitanya Mahaprabhu because Nityananda Prabhu told himself, for he is never have Krodha, Nityananda Prabhu. Krodha. Akrodha Paramananda. Yes, he is Akrodha Paramananda. And Nityananda Prabhu have two wives, Janavi Devi and Vasudha Devi. In Krishna Lila, they are Vasudha, Revati and Vasudha, Revati, Varuni and Revati Devi. Nityananda Prabhu, if we will have mercy of Nityananda Prabhu, we will have very happy. Yes. And he has son, Virachandra Prabhu also. Virachandra or Virabhadra Prabhu. And Nityananda Prabhu have so many friends. These friends in Krishna Lila are some 12 Gopals. And so many friends, same Sridham came, Ramdas Akhiram, and Gauridas Pandit, and so many friends. And we can have mercy of these friends if we have mercy of Nityananda Prabhu. And Gaur Premanande Hari Hari. I will study English and will speak you more good Harikatha next time. वंदेऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गतकल हम लोगों ने श्री नित्यानंद प्रभु का शुभ आविर्भाव तिथि नित्यानंद त्रयोदशी का पालन किया और हम लोग नित्यानंद प्रभु का महिमा कीर्तन भी किया। अभी हम लोग हमारे सचिसुत प्रभु से श्रवण कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा वो जो बोल रहे थे उनको भी बता देता हूँ। तो सचिसुत प्रभु पहले बताया कि नित्यानंद प्रभु का तत्व के विषय में कि नित्यानंद प्रभु है कौन, ये कौन है। इनके विषय में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद बोलते हैं, एक ही स्वरूप दुहे भिन्न मात्र काय, आद्य काय विह कृष्ण लीलाय सहाय। कि नित्यानंद प्रभु साक्षात रूप से बलदेव प्रभु ही है, जो बलदेव प्रभु कृष्ण लीला में वही साक्षात रूप से नित्यानंद प्रभु होकर के आए, और कृष्ण लीला में जो कृष्ण वही साक्षात रूप से शिवन चैतन्य महाप्रभु है। तो जो बलदेव प्रभु श्री कृष्ण या नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु ये क्या है, एक ही स्वरूप, वास्तविक रूप में स्वरूप तो एक ही है, तात्विक दृष्टि से भिन्न मात्र काय, सिर्फ शरीर ही इनकी अलग अलग दिखाई देता है।
और आद्य काव्य। कृष्ण का काव्य अर्थात कृष्ण जब अपना लीला करना चाहते हैं, लीला को विस्तार करना चाहते हैं, तो क्या करते हैं? सबसे पहले वो स्वयं को ही विस्तार करते हैं कृष्ण। तो जो विस्तार करते हैं उनको बोलते हैं काव्य। काव्य अर्थात शरीर, उनके शरीर से ही निकलते हैं। तो काव्य जो उन सब जो काव्य है उनमें से जो आद्य सबसे जो मूल है, सर्वप्रथम विस्तार है कृष्ण का, वो है श्री नित्यानंद प्रभु या श्री बलदेव प्रभु। कृष्ण लीलाएं सहाय, और नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? कृष्ण के समस्त लीला में, बलदेव प्रभु के रूप में समस्त प्रकार की लीला में सहाय करते, A to Z। उनके विषय में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पद उनकी तत्व बतलाते हुए बोलते हैं, संकर्षण, जैसे कि प्रभु जी ने अभी बताए थे, वो सच्चित प्रभु ने, कि कैसे वो संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, तो उसका श्लोक के माध्यम से बोले, संकर्षण कारणोदयसाई गर्भोदशाई च पयदिशाई शेषस्य जस्यांश कलाश नित्यानंदाख्या शरणम अवस्तु। 5 स्वरूप से जो नित्यानंद प्रभु या बलदेव प्रभु अपने आप को प्रकट करके भगवान कृष्ण का सेवा करते हैं। क्या? संकर्षण। संकर्षण अर्थात द्वारिका में संकर्षण रूप से प्रकटित होकर के क्या करते हैं? संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, इन 4 जो विष्णु तत्व उनको प्रकट करते हैं। और द्वारिका में जितने सारे जीव हैं, समस्त जीव भी संकर्षण से ही प्रकटित होते हैं, द्वारिकावासी जो। और संकर्षण कारणोदयसाई, फिर संकर्षण का और एक अंश होते हैं महासंकर्षण, जो कि वैकुंठ में जितने सारे जो विग्रह हैं, वैकुंठ में जितने सारे, जैसे नरसिंह, वामन, वराह आदि जितने सारे विग्रह वो महासंकर्षण से प्रकटित होते। फिर महासंकर्षण से और एक पुरुष अवतार प्रकटित होते, कारणोदशाई से फिर और एक दूसरे पुरुष अवतार प्रकटित होते, क्षीरोदशाई, गर्भोदशाई, उनसे तीसरे पुरुष अवतार प्रकटित होते, क्षीरोदशाई, और उनसे फिर क्या प्रकटित होते? शेष, अनंत शेष। ये सब का प्रकटित होने का कारण क्या है? कृष्ण लीलाएं सहाय। कृष्ण के लीला में सहायता करने के लिए ये बलदेव प्रभु ही क्या करते हैं? अपने आप को प्रकटित करते हैं। हमारे गुरुवर्ग बोलते हैं कृष्ण लीला करने के लिए सिर्फ इच्छा मात्र करते हैं कि मैं ये लीला करना चाहता हूँ, बाकी जो समस्त कार्य है वो कौन करते हैं? श्री बलदेव प्रभु ही करते हैं। समस्त प्रकार के कृष्ण लीला में बलदेव प्रभु सहायता करते हैं। इस जगत में कारणोदशा के रूप में इस ब्रह्मांड का रचना करना, सृजन करना, और जीवों को प्रकटित करके उस ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कराना, और एक एक ब्रह्मांड में स्वयं ही गर्भोदक्षाई के रूप में उस एक एक ब्रह्मांड का रक्षा करना, और प्रत्येक जीव के अंदर क्षीरोदक्षाई के रूप से परमात्मा रूप में विराजमान होना, और इस पृथ्वी को अनंत शेष रूप से धारण करना, और मुख्य रूप से उस अनंत शेष का अनंत मुख से निरंतर कृष्ण लीला का गान करना। तो इस प्रकार के समस्त प्रकार के लीला में श्री बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु सहायता करते हैं। और ब्रज में भी 5 रस में नित्यानंद प्रभु एक एक स्वरूप प्रकटित होकर के कृष्ण का सेवा करते हैं। और इस जगत में जब कृष्ण भी आते हैं, उस जगत में भी श्लोक तो भूल गया, बोला गया कि 10 उपादान से चामर, आसन, व्यजन, छत्र, पादुका आदि 10 उपादान से बलदेव प्रभु ही श्री कृष्ण का सेवा करते हैं। नित्यानंद प्रभु ही शिव चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। जहाँ जहाँ कृष्ण है, जहाँ जहाँ चैतन्य महाप्रभु हैं, वहाँ वहाँ नित्यानंद प्रभु होंगे। पहले नित्यानंद प्रभु प्रकटित होंगे, तब जाकर के चैतन्य महाप्रभु कहीं प्रकटित हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवतम में कृष्ण का आविर्भाव से पहले किनका आविर्भाव हुआ? बलदेव प्रभु का आविर्भाव हुआ, संकर्षण का आविर्भाव हुआ। क्यों? क्योंकि संकर्षण आकर के क्या करते हैं? स्थान प्रस्तुत करते हैं जहाँ से कृष्ण आविर्भाव हो सके, जहाँ से कृष्ण अपना लीला कर सके। तो ये सब तत्व दृष्टि है। और उसी तरह स्वयं को धाम के रूप में भी वो क्या करते हैं? विस्तार करते हैं, जैसे उस धाम में कृष्ण अपना अनेक लीला कर सके। इसलिए कृष्ण का जितना सारे सेवा है, समस्त सेवा क्या करते हैं? श्री नित्यानंद प्रभु ही ग्रहण करते हैं। इसलिए वो ये सेवा विग्रह है। और क्या करते हैं? उन नित्यानंद प्रभु के बिना, उनके कृपा के बिना क्या करेंगे? किसी को चैतन्य महाप्रभु, जैसे कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, किसी को चैतन्य महाप्रभु नहीं मिलेंगे।
कृष्ण तो दूर की बात है। इसलिए क्यों? क्योंकि कृष्ण जहाँ जहाँ विराजमान है वहाँ वहाँ पहले से ही नित्यानंद प्रभु विराजित है ही है। इसलिए कृष्ण को अगर कोई प्राप्त करना चाहते हैं, है ना नित्याय विनय भाई राधा कृष्ण पाइत नहीं, नित्यानंद प्रभु के बिना राधा कृष्ण को कोई भी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। और दूसरे पक्ष में अगर नित्यानंद प्रभु को कृपा किसी को प्राप्त हो गया तो उनको अनायास ही चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हो जाएंगे, उनको अनायास ही राधा कृष्ण प्राप्त हो जाएंगे। कैसे हमारे गुरुजी वर्णन करते थे कि हम लोग शिवानंद सेन की कथा तो श्रवण करते हैं, श्रवण किए हुए हैं कि कैसे शिवानंद सेन जो अनेक सारे भक्त लोगों को लेकर के चैतन्य महाप्रभु के आदेश से जगन्नाथपुरी जाते थे। तो शिवानंद सेन को जब श्री नित्यानंद प्रभु का कृपा प्राप्त हुआ, जब नित्यानंद प्रभु शिवानंद सेन के ऊपर प्रसन्न हो गए, इसको देख करके ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु स्वतः ही नित्यानंद प्रभु के शिवानंद सेन के समस्त परिवारों के प्रति अत्यंत प्रसन्न हुए और गोविंद प्रभु को आदेश दिए, जब तक शिवानंद सेन रहेंगे जगन्नाथपुरी में, उनके परिवार के, उनके पुत्र पत्नी सबका तुम क्या करना, ध्यान रखना। और यहाँ तक कि स्वयं ही चैतन्य महाप्रभु अपने आप से श्री शिवानंद सेन का पुत्र को अपना चरण प्रदान किए, उनका अंगूठा उनका पुत्र को द्वारा चुसवाए। इतना कृपा इसमें चैतन्य महाप्रभु अपने आप से ही अपना मान लिया। क्यों? क्योंकि ये मेरा नित्यानंद का प्रिय है। तो उसी प्रकार जो नित्यानंद प्रभु के प्रिय हैं, जो नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र है, साक्षात स्वतः ही वो चैतन्य महाप्रभु कृपा पात्र है ही है, पूछने की जरूरत नहीं है। और अपर पक्ष में नित्यानंद प्रभु का कृपा पात्र नहीं होने से, उनका नहीं आज्ञा प्राप्त करने से चैतन्य महाप्रभु किसी को प्राप्त नहीं होंगे, इच्छा होने पर भी, जैसे हम श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के चरित्र में देखने के लिए मिलता है। और सच्चिदानंद प्रभु ने बताया कि नित्यानंद प्रभु का और एक नाम क्या है, अक्रोध। अक्रोध परमानंद, वो बड़े अक्रोध, क्रोध में रहते नहीं और परमानंदित रहते हैं। अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय। नित्यानंद प्रभु कभी क्रोध करते नहीं। कैसे? हम लोग जैसे देखते हैं शिवानंद सेन के ऊपर क्रोध किए, तो क्रोध कैसे नहीं करते? क्रोध तो हुआ, तो गुरु महाराज जी बोलते हैं ये क्रोध नहीं है, क्योंकि जो क्रोध है तो कह रहे कि जगाई माधाई नित्यानंद प्रभु को आक्रमण करने पर भी जहाँ क्रोध उपस्थित होने का समस्त कारण उपस्थित है, तब भी नित्यानंद प्रभु क्रोध नहीं किए। और जहाँ जहाँ भी नित्यानंद प्रभु का क्रोध दिखलाई पड़ता है, वहाँ क्या है, वहाँ वो वास्तविक रूप में क्रोध नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्रोध है वो एक तामसिक क्रिया है। क्रोध किसे जन्म लेता है? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो उपजायते। क्रोध का उत्पत्ति स्थल है काम। जिसके हृदय में काम होएगा उसके हृदय में ही क्रोध उत्पन्न होएगा, काम से जो उत्पन्न क्रोध। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु के अंदर कोई काम नहीं है, इसलिए उनके अंदर जो क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो कोई तामसिक क्रिया नहीं है, वो तो शिवानंद सेन को कृपा प्रदान करने के लिए ही वो क्रोध दिखला रहे हैं। वास्तविक रूप में अंदर से वो क्या है, परम प्रसन्न है। कुछ और कारण के लिए वो क्रोध को किसी प्रकाशित करे। जैसे गुरु जी ये भी बतलाते थे, जब वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं कि ए तो परिहारी जय पापे निंदा करे तबे लाठी मार तार सिरेर ऊपर है, कि नित्यानंद प्रभु का इतना महिमा में गुण कीर्तन कर रहा हूँ, तो इतना इसके सुनने के बावजूद भी जो पापे नित्यानंद प्रभु का निंदा करता है, मैं क्या करूँगा, उनके सिर पे लात मारूंगा, जो कि साधारण लोग भी नहीं करता। सिर के ऊपर लात कौन मारता है? साधारण लोग भी तो करते नहीं। साधारण जो मतलब सभ्य लोग है, जो शांत स्वभाव के लोग, वो तो ऐसा करते नहीं, दुष्ट स्वभाव के लोग ही करते। और ये तो वैष्णव है, वैष्णव तो कभी भी किसी के सिर के ऊपर लाठी मारेंगे नहीं। तो वास्तविक रूप में उनका कहने का उद्देश्य ये नहीं है कि मैं उनको दंड दूंगा या मैं उनको जैसे जो क्रोधित जो लोग होते हैं उनके तरह मैं आचरण करूंगा। श्रील प्रभुपाद जी इसमें क्या बोल रहे हैं कि नहीं, श्री वृंदावन दास ठाकुर इतने दयालु है, इतने पतित पावन है, जो लोग का इतने कम सुकृति है, इतनी कम सुकृति जो कि नित्यानंद प्रभु का महिमा श्रवण करने के बावजूद भी उनके चरण के प्रति अनुराग नहीं हो पाते हैं, उनको नित्यानंद प्रभु के चरण में समर्पित करने के लिए क्या करना चाहते हैं, स्वयं ही अपना चरण धूलि उनको प्रदान करना चाहते हैं। इसलिए ये उनका करुणा है, ये उनका पतित पावन लीला है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर के लिए भी बोलते कि पतित पावन
श्रील वृंदावन दास ठाकुर, क्योंकि पतितों को पावन करने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं। तो उसी तरह नित्यानंद प्रभु का जो क्रोध दिखलाई भी दे रहा है वो वास्तविक रूप में क्रोध नहीं है। कि वृंदावन दास ठाकुर जब बोल रहे हैं ए तो परिहारी से जय पापे निंदा करे तबे लाथी मारा तार सिर ऊपर है, तो कहना चाहते हैं मैं क्या करूँगा, मेरे गुरुदेव श्री नित्यानंद प्रभु का इतना महिमा श्रवण करके भी जो क्या करेंगे उनके चरणों के प्रति अनुरागी नहीं होता। अच्छा, बहुत सारे और लोग भी वहाँ पर उपस्थित हैं। उनमें से सभी लोग ही नित्यानंद प्रभु के आचरण को भी देखते हैं, उनकी कथा भी सुनते हैं और उनके व्यवहार भी देखते हैं, किंतु बहुत सारे लोग तब भी नित्यानंद प्रभु की वास्तविक जो महिमा उसको समझ नहीं पाते, उसमें भूल दर्शन करते, उसमें उनको समाज से उनका होता नहीं। तो ऐसे वाले व्यक्तियों को क्या उपदेश कर रहे हैं इस वचन के द्वारा वृंदावन दास क्या उपदेश कर रहे हैं वो बताओ। एक तो परिहारे अर्थात हम लोग को आप लोगों को कह ही रहे हैं कि किस प्रकार से उनको अप्रोच करो, किस प्रकार से उनका संग करो, कैसे उनको समझो, ये सारा कुछ तो बता रहा हूँ। किंतु यदि कभी किसी का पाप बहुत अधिक हो और उन अपने पापों के कारण, क्योंकि पाप होने से क्या होता है, बहुत अधिक पाप हो किसी का, महापातकी हो, पातकी हो, तो उसके कारण उसको बहुत अच्छी वस्तु मिलने पर भी वो उसको धारण कर नहीं पाता। तो इसलिए बोले कि कोई ऐसा महापातकी जिसको इतना सारा महिमा बताने पर, दिखाने पर भी, बोलने पर भी कि देखो इनको साधारण मनुष्य नहीं समझना, तब भी यदि वो इस वस्तु को धारण नहीं कर पा रहा है, तब मैं क्या कहता हूँ उसके लिए भी कि वो व्यक्ति मेरे पास में आए, मेरे पास में बैठे, मैं उसको उसके सिर पे लाठी मार करके का मतलब मैं उसको अपना संग दे करके, मैं उसको आर्थिक के रूप में सारा समय दे करके उसको क्या कर दूंगा, नित्यानंद प्रभु के चरणों में उनका अनुराग उत्पन्न करा दूंगा। अब ये एक जो है उसको उसका डिटेल है कि किस प्रकार से, किस भावना से वो बोल रहे हैं। केवल मात्र लाठी मारने वाला जो अर्थ है वो उस प्रकार का नहीं है। आवाज आ गई सबको? और गुरुदेव बोलते हैं दिखला रहे हम लोग, सिखा रहे। नित्यानंद प्रभु साक्षात रूप में जगत में विराजित है, वृंदावन दास ठाकुर भी विराजित है, नित्यानंद प्रभु के बहुत सारे और सेवक लोग भी हैं। आवाज आ रही है? उनके सेवक लोग भी उपस्थित हैं, वो सब समय भक्ति कर रहे हैं
अन्य व्यक्तियों को उपदेश भी प्रदान कर रहे हैं। साक्षात रूप में सारा कुछ चल रहा है। उस समय भी फिर बहुत सारे लोग ऐसे वाले होते हैं जो उनकी महिमा को समझ नहीं पाते, उनको उस दृष्टिकोण से देखते नहीं हैं। उनके लिए क्या कह रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि कितनी बार ही ऐसे महत् पुरुषों के संबंध में कहा जाता है कि इनको साधारण मनुष्य नहीं समझना, इनकी अवज्ञा नहीं करना, इनका सदैव संग करना, और जो वस्तु तुम्हें नहीं समझ आती उसके विषय में एक सिंसियर एटीट्यूड के साथ में इंक्वायरी करना, फिर उसको समझ लेना। जो पद्धति बतलाई जा रही है उसको बहुत सारे लोग तब भी पालन नहीं करते। तब उनके लिए कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा पापों के कारण इस प्रकार का अवस्था है, तुम्हारा विश्वास होता नहीं और तुम सब समय के लिए उनमें कुछ न कुछ भूल त्रुटि इत्यादि देखने के अभ्यस्त हो गए हो, तो तुम्हारा इसके द्वारा अपना ही अमंगल करना होगा। इसीलिए मैं तुम्हारे को कहता हूँ कि तुम क्या करो, मेरे निकट में आया करो, जितना अधिक हो सके मेरे पास में आओ। मैं अपनी आप से अपना समय दे करके तुम्हारे स्तर के अनुकूल बात करके तुम्हारे को उन्नत करके उन नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझा दूंगा, तुम्हारे को ऐसे स्तर पर ले आऊंगा जिससे कि फिर तुम भी अच्छी तरह से सारा कुछ देख पाओगे। तुम्हारे पाप दूर करवा दूंगा। वो कैसे दूर होएंगे? मेरे संग से। मेरे चरण की रज जब तुम्हारे मस्तक पर पड़ जाएगी तो उस प्रकार का भी मैं करने के लिए प्रस्तुत हूँ। मैं ही बोल रहा हूँ कि मैं ही क्या करूँगा तुम्हारे प्रति, इस प्रकार की कृपा करूँगा। इस भावना के साथ में ये वाले वचन कहे गए। ना आगे और बोल, ये वाला छोड़ देते हैं, एक पहले इनका प्रश्न ले लेते हैं। ना, मैंने बोला कि हम लोगों का तो इस प्रकार का एक अवस्था है कि हम लोग क्योंकि साधारण लोगों में दोष देखते हैं, जिस प्रकार के संसार में रहते हैं वैसी वाली चीज़ें करते रहते हैं, इसलिए वही की वही चीज़ें ही हम लोग जो भगवान हैं और शुद्ध साधु हैं उनके ऊपर भी वही लागू करते हैं। किंतु वहाँ के नियम अलग हैं, उनको उस प्रकार से डील नहीं करो। अपने एटीट्यूड को साधारण लोगों के साथ में भी ठीक करो, फिर भगवान और सत्पुरुषों का तो कहना ही क्या, उनके प्रति भी अपने आप को ठीक करो। सब समय जैसे हमारे घर में बोलते थे कि औखा होके क्यों बोल रहा है, औखा होके क्यों बोलता है। औखा होके बोलना क्या होता है? मतलब जैसे ही किसी ने कुछ पूछा, किसी ने कुछ कहा, साथ ही साथ में उसको एकदम से उल्टा जवाब देने वाला। सब समय इसको क्या बोलते हैं कि औखा होके बोलता है बहुत। मतलब कि सब समय अपने आप को बड़ा समझने वाला, मैं ठीक हूँ सब समय ऐसा मानने वाला, और किसी के दूसरे की बात को, उसके हृदय को, उसकी भावनाओं को समझने की कोई चेष्टा नहीं करने वाला। ऐसे वाला व्यक्ति जो होता है वो क्या करता है, किसी के मन की बात को गुरुत्व ही देना नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता। जो केवल मेरे को दिखाई दे रहा है, जो मेरे को समझ आ रहा है वही ठीक है, बस ज़्यादा बात मत करो। इस तरह के स्वभाव हैं अधिकांश लोगों के। बेनिफिट ऑफ डाउट तक भी देना हम लोग सीखते नहीं हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट समझते हैं?
जैसे मैं मथुरा में रहता था जिस समय, उस समय गुरुदेव और माधव महाराज जी के कमरों की चाबी मेरे पास होती थी हमेशा, और उनके कमरे में बैठ के अपना काम करते थे, हम लोग अपनी सेवा करते थे, इसलिए वो लोग कमरा खुला छोड़ जाते थे। तो उस समय गुरुदेव की लाइब्रेरी को ठीक कराया था पूरा। गुरुदेव चाहते थे मेरी लाइब्रेरी को ठीक करो, तो उन सारे पुराने ग्रंथों को 50-50 ग्रंथ निकाल करके उसकी नई जिल्द चढ़वानी है। काम वाले को बुलाता था, वो आता था, 50 ले जाता था, बना करके ले आता था जिल्द, फिर उसको नई वाली देते थे हम लोग। तो इस तरह से करता था। तो अभी उसने लगभग 500 ग्रंथ कर दिए, तो उसके बाद उसने मेरे से पैसे मांगे कि मेरे को पैसे दे दो पहले, फिर आगे और काम भी करूँगा, मेरे को पैसे चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैं पैसे रखे थे मेरे अपने कमरे में, वो माधव महाराज जी के कमरे में बैठा था मेरे साथ। वहाँ पर उसको मैंने छोड़ दिया, पैसे लेने चला गया। माधव महाराज जी के जिस टेबल पे मैं काम करता था, वहाँ पर एक छोटी सी घड़ी रखी रहती थी। मैं उठा, मैंने अपने ग्रंथों को यूँ किया और मैं पैसे लेने के लिए चला गया। अब उसको पैसे दे दिए, वो चला गया। उसके बाद में मैं अपना काम करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद टाइम देखूंगा, घड़ी नहीं दिखाई देती सामने। साथ ही साथ में दिमाग में क्या आता है, जो उसको बिठा के गया था 5 मिनट न 4 मिनट, वही घड़ी लेके गया होगा, यहाँ से उठा के चला गया। ये क्या आ गया, दिमाग में आ गया। घड़ी इधर उधर देखता हूँ, कहीं भी मिलती नहीं, तो क्या हो गया, वही लेके चला गया। ये मेरे मन में आता है। अब उसका फ़ोन नंबर नहीं है, कहाँ रहता है वो भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता था। तो क्या करना, कोई बात नहीं, फिर आएगा ग्रंथ लेने के लिए न देने के लिए, तब देखूँगा, तब बात करूँगा। तो अभी वो तो आया नहीं, किंतु मेरे को शाम को मैंने जैसे टेबल को अपने ठीक किया, मेरे को ही वो दीवार में फंसी हुई दिखाई दे गई घड़ी। मेरे को घड़ी मिल गई। तो इसको बोलते हैं कि अब मैंने पहले से ही क्या कर लिया, एकदम से संशय कर लिया कि उसी ने उठाई होगी। किंतु बेनिफिट ऑफ डाउट क्या होता है, हो सकता है जी मैंने कहीं और रख दी, हो सकता है जी कहीं गिर ना गई हो, ध्यान से इसको देख लूँ। तो उसको इतना भी नहीं कि हो सकता है जी वो नहीं करके गया ऐसे वाला काम। तो हम लोग इतना तक भी किसी को स्पेस देने के आदी नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे को इस संसार में यही सब प्रकार का वृत्ति हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति हमारे परम मंगल के लिए भी कुछ बात बोले, हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ में उसमें इफ, बट, दिस, दैट, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। कभी भी ऐसा नहीं होता जो मैं बड़े आदर के साथ में, प्रेम के साथ में किसी की भावना को समझने के लिए अपने बुद्धि को शांतिपूर्वक 2 मिनट भी देता हूँ, नहीं दे पाते। तब फिर वही की वही चीज़ हमारी कहाँ पर लगनी शुरू होती है, सभी जगह पर ही। इसीलिए हम लोगों का एक विपत्ति आता है सब समय बहुत बड़ा, कि हम लोग केवल इसी में ही फंस करके रह जाते सब समय। कौन मीठा बोलता, कौन कड़वा बोलता, किसने कौन क्या खाता, क्या नहीं खाता, मेरी बात कितनी सुनता, मेरी बात नहीं सुनता, अपनी चलाता, अपनी नहीं चलाता, इनमें तो सब में फंसते। किंतु किसका उन सारी चीज़ों के पीछे भावना क्या है, उसको कभी भी हम लोग समझने के लिए प्रयास ही नहीं करते। यही की यही चीज़, क्योंकि हमारा स्वभाव बना हुआ, तो यही की यही चीज़ हमारी वैष्णवों के साथ में भी वही लगती है। इसीलिए मेरे को उनसे जो पारमार्थिक सारा लाभ होता है वो बहुत बड़ा, और ये वाले लाभ या हानि, मीठा बोलना, नहीं बोलना, कुछ देना, कुछ नहीं देना, ये बहुत छोटी सी वस्तु है।
मैं इन छोटी सी वस्तुओं को बहुत गुरुत्व देता, बहुत बड़ी वस्तु को गुरुत्व दे नहीं पाता। छोटा वाला अगर मेरे को ठीक मिले तब मैं फिर बड़े वाले में से भी पता नहीं कब कैसे थोड़ा थोड़ा ग्रहण करूँगा। और अगर छोटे वाला मेरे अनुसार नहीं हुआ वस्तु, तो बहुत बड़ी वस्तु, क्योंकि मेरे को उसको गुरुत्व मैंने अभी तक दिया ही नहीं, ना उसके गुरुत्व को समझता हूँ, तो इसीलिए ये अच्छा हुआ तो चलता चलूँगा, ये वाला छोटा वाला चीज़ अगर अच्छा नहीं हुआ तो बड़े वाले को तो मेरे चाहना क्या, ये वाले के कारण सारा कुछ समाप्त। बस कौन वैष्णव, कौन गुरु, कौन भगवान, मेरे को कोई लेना देना नहीं। एक बच्चा आता था यहाँ से सामने से ही, इसी गली से, जो भी नाम था उसका, तो उसकी माता एक दिन आई, वो बोलता है मैं तो बहुत दिनों तक मंदिर में गया, मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे को छोड़ दिया, मेरा ब्रेकअप हो गया, ऐसे भगवान की क्या पूजा करनी। बस यहीं तक ही स्तर है, कितना निम्न स्तर है। भगवान के साथ संबंध का उद्देश्य क्या है? ब्रेकअप हो गया तो क्या मंदिर में जाना और क्या भगवान के पास जाना। और एक आता था कोई व्यक्ति, छोटी अनुराधा उसको प्रचार करती थी, वो व्यक्ति आता था, भरत प्रभु ने ना मैंने, वो बता नहीं पाई, उसने सिर्फ बोला जो वहाँ पर सब समय रहते हैं जो, तो मैंने उसको बोला ना, भरत प्रभु ने बोला कि प्रसाद के लिए अभी यहाँ पर बैठ जाओ। यहाँ बैठा, फिर उसके 5 मिनट ना 2 मिनट के बाद उसको बोला नहीं यहाँ से उठ जाओ, वहाँ पर आ जाओ। बस इतने में हमारे को यहाँ बिठाया, फिर यहाँ से उठा के वहाँ उठाया। इन लोगों के पास में क्या जाना, परेशान करते हैं उल्टा। इतने में ही ये इस चीज़ का गुरुत्व है उनके लिए, उससे आगे और किसी वस्तु को समझने वाला होता नहीं। तो इसलिए उनका स्तर बहुत निम्न, हमारा हो सकता थोड़ा उससे ऊपर, किंतु भक्ति वाला जो चित्त वृत्ति वो वाला नहीं ले पाते, बहुत सारी अलग अलग वस्तुओं में ही फंस करके रह जाते, और जो भक्ति का लाभ वो नहीं उठा पाते। उसी वस्तु को कह रहे हैं एतो परिहारे यदि, कह रहे हैं इतना अधिक बतलाने पर भी कि इनके साथ में जो संबंध रखना, इनको जो देखना, वो बहुत अलग प्रकार का देखना, इन सारी वस्तुओं में उलझ करके नहीं रहना। ये तो परिहारे यदि, पापी निंदा करे, पापी होने के कारण, बहुत घोर पातकी होने के कारण वो व्यक्ति फिर कैसा वाला हो जाता है, इसी प्रकार का होता है, वो आगे नहीं जा पाता। तो उसके लिए वृंदावन दास ठाकुर कह रहे हैं कि ऐसे वाले व्यक्ति वो मेरे पास में आ जाओ, मैं उनके ऊपर अपना समय पूरा देने के लिए प्रस्तुत हूँ। इसी का नाम ही है कि मैं अपने चरणों की रज दूंगा, उनको उन्नत करूंगा और इस स्तर तक ला करके खड़ा कर दूंगा कि वो इस बात को समझ सके। जैसे हमारे गुरुदेव बोलते थे कि मेरे से मैं केवल एक ही चीज़ का तुम सभी को प्रॉमिस करता हूँ, किसी भी और चीज़ का प्रॉमिस नहीं करता, केवल एक चीज़ का प्रॉमिस करता हूँ कि यदि तुम मेरे साथ में बैठोगे, मेरी कथा सुनोगे, मेरी बातें मानोगे, तो तुम्हारा कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, तुम भक्ति में आगे बढ़ोगे, ये मैं तुमको प्रॉमिस करता हूँ और कोई प्रॉमिस नहीं। उसके द्वारा तुम्हारा शरीर ठीक रहेगा, तुम्हारे को कोई मारेगा या कभी नहीं मारेगा, तुम कष्ट पाओगे नहीं पाओगे, ये सारी बातों के लिए मैं कोई प्रॉमिस नहीं करता, कोई प्रॉमिस नहीं, उसके विषय में मेरे से बात नहीं करने आना। अर्थ, इसका कहने का अर्थ क्या है, मेरे को ये मिला, मेरे को वो नहीं मिला, मेरे को आपने ये दिया और मेरे को आपने वो नहीं दिया, कोई भी स्कोप नहीं है किसी भी बात का। किंतु केवल इसी वस्तु को जो गुरुदेव कह रहे हैं, इसके लिए कितने लोग उनके साथ में संपर्क युक्त हो पाएंगे, उनकी महिमा को, कि ये उनका उल्टा क्या है,
बहुत बड़ा महिमा है कि केवल इस वस्तु को मैं दे सकता हूँ। साधारण दृष्टिकोण से क्या है, बाकी कुछ भी नहीं दे सकते, बाकी कुछ भी नहीं दे सकते। उसके अनुसार, उनके अनुसार क्या हो जाएगा कि इसका मतलब ये सब कुछ नहीं दे सकते, छोटे हैं ये। और जिसका बहुत उन्नत चित्तवृत्ति होगा वो कैसे देखेगा कि ये इस वस्तु को प्रदान कर सकते हैं और मुझे किसी वस्तु की आवश्यकता ही तो नहीं है। इनका इतना महिमा है, ये इतनी बड़ी वस्तु दे सकते हैं, तो उसका दृष्टिकोण जो है वो बड़ा अलग प्रकार का होगा, बड़ा अलग प्रकार का। तो इन सारी बातों को ही उस प्यार में समझाने का प्रयास कर रहे हैं एक साथ में। ये तो परिहारी यदि पापी निंदा करे, शब्द एक अलग प्रकार के, उनका जो वो जो अध्याय पढ़ो पूरा, उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है पूरा वो इसी प्रकार का जाता कि इतने करुणामय, इतना अधिक सब समय प्रेम में निमग्न रहने वाले और जगत की सुध बुध से पूरी तरह से जो अलग व्यक्ति, उसके साथ, उससे फिर आप यदि जागतिक व्यवहार इत्यादि की आशा करो और वो नहीं मिलने पर उनके प्रति यदि तुम दोषारोपण करो तो तुम्हारा स्तर बहुत निम्न है। मैं तुम्हारे स्तर को इस निम्न अवस्था से उन्नत अवस्था तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत हूँ, तुम आ जाओ और मेरी चरण रज ले लो। इस प्रकार का भावना से, इस प्रकार की भावना से युक्त होकर के वो बोल रहे हैं। वहाँ पर पूरा कॉन्टेक्स्ट वही वाला है। ये नित्यानंद प्रभु की सारी महिमा बोल करके फिर बोल रहे हैं, जो इतना सारा कुछ सामने सामने दिखाई दे रहा आंखों के, कि वो जगत की किसी वस्तु में जा नहीं रहे, कोई वस्तु इकट्ठी नहीं कर रहे, कोई प्रजल्प नहीं करते, जो संसार की बातें करता उनके साथ बैठते ही नहीं एक मुहूर्त भी, सब समय कृष्ण कीर्तन में रत रहते हैं। तो इतना सारा कुछ देख करके भी तुम्हारा उनके जैसा बनने की इच्छा नहीं करती, तुम्हारा उनके जैसा बनने की इच्छा नहीं करती। अगर नहीं कर रही तब, और तुम उल्टा देख रहे हो कि ये कैसा व्यक्ति, सब समय केवल मात्र इन्हीं वस्तुओं में व्यस्त रहने वाला, और इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको समझ नहीं आता कि हमारे को भूख लगी, हमारे को प्यास लगी, हमारे को ये भी चाहिए, हमारे को वो भी चाहिए, इसको समझ नहीं आता। इस प्रकार का जो सारा तुम जहाँ पर आशा लगा रहे हो वहाँ आशा पूरी भी होएगी नहीं, दोषारोपण करने पर भी उनका हानि कुछ होएगा नहीं, तुम्हारा अपना हानि होगा। इतना सारा कुछ बतलाने पर भी, देखने पर भी तुम्हारा ऐसा अवस्था, तुम कितने बड़े पापी हो, महापापी हो। तो इसीलिए महापापी होने पर भी जो नित्यानंद प्रभु जैसे व्यक्ति का कृपा प्राप्त कर लेता है, वो महापापियों को भी, महापातकियों को भी क्या कर सकता है, उनके स्तर को भी बहुत निम्न अवस्था से बहुत उन्नत अवस्था तक ला करके वो सब देखने, समझने, उसमें प्रविष्ट होने की एक योग्यता प्रदान कर सकता है। इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी महिमा तो मैं क्या बतलाऊं, मेरे जैसा व्यक्ति जिन्होंने उनका संग किया है थोड़ा बहुत, वही व्यक्ति ही क्या कर सकता है, तुम्हारे को बहुत निम्न से बहुत ऊंचा पहुंचा सकता है। फिर वो तो क्या कर सकते हैं, उसके विषय में मैं तुम्हें क्या बतलाऊं। इस प्रकार की भावना से ये सारी बात बोल रहे। चलो, अब आपने और कुछ बोलना था? ठीक है, आज यहीं पर ही कथा को रख देते हैं, 5 मिनट कीर्तन करते हैं। नितिन भैया कीर्तन करेगा आज, उसको तो
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ जशोदानंदन कृष्ण 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 हरे हरे राधिका रमण राम 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 हरे हरे ओ ब्रह्मांड के चतुर्मुख कृष्ण कृष्ण हरे हरे शिव जपे पंचमुखी राम राम हरे हरे ओ नारद मुनि बजाय बिना कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम नित्यानंद राम जय नित्यानंद राम निताय है निताय है निताय है निताय है गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल ब्रह्मा 5 मुख से बोले, 4 मुख से बोले, शिव जी 5 मुख से बोले, नारद जी की बीना बोले। मेरा क्या लेना देना? फर्क पड़ता कोई से? बताओ क्यों सुनाते हैं ये वाली बात? आप संजय मंगल जी बताओ। ब्रह्मा इन्हें कीर्तन करते करते बोल रहे हैं कि यही वाला जो नाम है जो अभी हम कर रहे हैं, ये ब्रह्मा जी 4 मुख से सब समय बोलते रहते हैं। शिव जी भी जो है उनके 5 मुख, शिव जपे पंचमुखे, वो 5 मुख से बोलते रहते हैं। नारद जी जो है बड़े आनंदित होकर अपनी बीना से सब समय यही नाम बोलते रहते हैं। मेरे को इससे क्या लेना देना, और इसको सुन करके मेरा क्या आता क्या जाता? इतने बड़े बड़े वैष्णव देवता हैं, वैष्णव हैं, सब भगवान जी का नाम लेते हैं, तो हमारी परिस्थिति क्या है? तो हमें तो उनका नाम लेना है। और कोई बात जीव प्रभु बताओ। ये वाली बात इन्होंने ठीक बता दी कि आज इतने बड़े बड़े लोग, किंतु मैं उनको मानता ही नहीं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मेरा क्या लेना? ब्रह्मा शिव नारद ये क्या होता है ही नहीं कोई भी।
राम की महिमा का ही समझ में आता है, राम की इतनी महिमा, राम की इतनी महिमा की ये लोग भी सब गान करते हैं, हमें भी करना चाहिए, किंतु मैं तो उनको मानता ही नहीं ना। मेरे को क्या इससे आता क्या जाता। वासुदेव अब बताओ। क्या मैं मानते नहीं ना, मानते तो क्या करें। अभी तो सुनाया था कि पापी अगर कोई हो महापातकी तो वो तो मानेगा नहीं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? सिर पे लात मारो। क्या चीज? सिर पे लात मार दो। सिर पे लात मारूंगा तो वो मेरे को सोटी मारेगा। मुझे थोड़ा सा मानता तो और नहीं लाया मुझे। और खराब हो जाएगा। वो कह रहे हैं प्रसाद के लिए यहाँ से हटा दिया, कह रहा कि ये सारे पागल हैं। उसके बाद अगर दाती मारोगे तो क्या करेगा बताओ। उनके नाम मानने पर भी जो प्रभाव है उसका, जैसे आचरण है या उससे जो एक आचरण जो दिखाई देता है वो तो इसका आचरण मैं ब्रह्मा शिव जी को देख ही नहीं पा रहा हूँ, तो इसका आचरण इसीलिए इसी बात को समझना पड़ता है। जैसे कल हमने श्रवण किया कि हमारे गुरु पाद पद्म ये नित्यानंद प्रभु से अभिन्न है। हमने कल श्रवण किया कि हमारे गुरु वर्ग जो हैं वो हमारे लिए वही नित्यानंद स्वरूप हैं। हमने नित्यानंद प्रभु को देखा नहीं, उनसे रिलेट कैसे करेंगे? तो इसलिए किससे रिलेट करते हैं? अभी हम लोग जो अपने आंखों के सामने साक्षात रूप में जिनको देखते हैं उनसे ही तो रिलेट करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो ब्रह्मा शिव नारद इत्यादि की बात, इसको साधारण शब्दों में बार बार लोग क्या बोलते हैं, देखो विदेशी लोग भी अब भगवान का नाम करते हैं, तुम भी करो। इससे कुछ तो होता होगा ना, नहीं तो वो लोग पागल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं फिर भी करते हैं। इस प्रकार से केवल मात्र एक हम लोगों को कन्विंस करने के लिए कहते हैं कि अगर जैसे बंगाल के लोग, उनको वहाँ पर जाने पर प्रचार करने के लिए उनको क्या सुनाया जाता है कि चैतन्य महाप्रभु आपके ही देश के, आपके स्थान के, उनकी शिक्षाओं को इतना सारे लोग बाहर सारे स्वीकार कर रहे हैं, आप लोग भी तो ठीक से कम सुनने का प्रयास करो। इस प्रकार से उनको सुनाया जाता। भारत के लोगों को क्या सुनाया जाता? विदेशी लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बोलते हैं ना, क्यों उनके लिए सुनाया जाता? इसका मतलब कि वो जिस चीज का आदर करेंगे वही बहुत बड़ी होएगी क्या? वो लोग जिसका आदर करेंगे वही बड़ी होएगी। किंतु दिमाग में ऐसा भरा हुआ लोगों के, इसलिए उनको क्या कर देते हैं, उसी प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं। किंतु तब भी केवल मात्र इतना कहने से समझ पाते, कुछ लोग उसके कारण पहले आगे आते भी। जैसे शिला स्वामी महाराज जी बोलते थे कि इंडियन लोगों को ये एक बीमारी लगी पड़ी है कि जो भी चीज़ विदेश की होएगी वो बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए मैं साधु भी विदेशी लाऊंगा। जैसे उनको लाएंगे फिर ये क्या करेंगे, आसानी से उनको स्वीकार कर पाएंगे कि वहाँ का साधु फ्रॉम अमेरिका, सन्यासी फ्रॉम अमेरिका, उसको लेकर के इनका क्या होगा, बड़ा आश्चर्य होगा। हमारे महाराज जी बोलते थे कि प्रभु एक जगह पर 50 साल से भजन करने वाले साधु को बिठा दो और दूसरा 2 दिन का सिर्फ उसको तिलक कंठी लगा करके नकली उसको बिठा दो, ये साधु है, विदेशी होना चाहिए, स्किन उसकी कैसी होनी चाहिए, गोरी एकदम। उसके बाद में फिर देखना जो ऐसी जगह पर बिठाओ जहाँ पर सभी लोग बिल्कुल नए, उनको कोई लेना देना नहीं, वो सारे उसके पास ही जाएंगे जो 50 साल का भजन करके इसका क्या हमारे से लेना देना। इस प्रकार का सबका होगा।
होता है ऐसा नहीं, अलग अलग स्थितियां। तो अभी जो इसमें बोल रहे हैं ब्रह्मा जपे, शिव जपे, नारद जपे, ये किसके लिए बात है? जो बहुत दिनों तक साधु संग कर चुका, भजन कर चुका, शास्त्र पढ़ चुका, उसको फिर उसका जो भक्ति का, हरि नाम करने का जो एक फ्लो है वो बहुत प्रबल हो उठे, उसके लिए है ये वाला वचन किसके लिए है? जो इस वस्तु को गुरुत्व दे पाएगा, जो इस वस्तु को स्वीकार करता है। जो ब्रह्मा, शिव, नारद इत्यादि ये बहुत श्रेष्ठ भक्त हैं, इन बहुत बलशाली हैं, बहुत योग्य हैं, वो इन वस्तुओं को समझ पाएगा, रिलेट कर पाएगा। नहीं तो नहीं। जैसे गुरुदेव भी ये करते हैं, सुबह 2 घंटे 4 घंटे बैठ करके हरि नाम करते रहते। तो तुम्हारे गुरुदेव करते रहे, इसका मतलब मेरे को करना पड़ेगा? नए व्यक्ति को अगर बोलोगे कि हमारे गुरुदेव 4 घंटे हरि नाम करते, इसलिए तुम भी करो, देखो इतने बड़े हैं वो करते हैं, वो करें, तुम्हारे लिए बड़े, मेरे लिए थोड़ा ना, मैं क्यों करूं? नए व्यक्ति के लिए वो बात समझ के बाहर है, वो उसको नहीं समझेगा। यही बात किसके लिए है? क्योंकि हर बात अलग अलग स्तर के व्यक्तियों के लिए होती है। तो इसीलिए जो इस गुरुत्व को समझ पाता है, जो शिव जी कौन, ब्रह्मा जी कौन, नारद कौन, तब वो क्या करेगा? इस बात को गुरुत्व देगा कि जब वो कर रहे, मेरे को क्या करना है? अवश्य ही और चीज़ों से अलग हट करके, इसमें समय दे करके इस कार्य को अवश्य ही करना है, वो गुरुत्व दे पाएगा। किंतु साधारण व्यक्ति के लिए वो बात नहीं, साधारण व्यक्ति के लिए वो बात है ही नहीं। साधारण व्यक्ति के लिए क्या बोलना पड़ता है? श्रील स्वामी महाराज जी ने कहा ट्रांसीडेंटल वाइब्रेशन है, ट्रांसीडेंटल साउंड वाइब्रेशन, अर्थात ऐसे वाले शब्द हैं ये जिसके अंदर एक बहुत प्रकार की शक्ति है, जिसको अभी तुम समझ भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, मगर अगर थोड़ा सा इसके साथ में बैठोगे ना, पीसफुलनेस ऑफ माइंड होगा, तुम्हारे में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तुम्हें जो है सारा कुछ अच्छा लगने लगेगा। उनको केवल इस स्तर पर आकर के बतलाना पड़ता, वो एक बहुत अलग, क्यों? क्योंकि उनको समझ ही उसी बात की आएगी कि हाँ, जैसे कौन एक प्रभु लिख रहा था, स्मरण नहीं आता, या तो हमारा सुशील या फिर एक और प्रभु है जलंधर का, उसका नाम नरोत्तम प्रभु। वो कौन है? जो लोकनाथ महाराज जी का शिष्य, ना गोपी, किंतु दूसरा नाम है उसका कुछ और, गोलोकनाथ। वो गोलोकनाथ ना तो सुशील, दोनों में से एक। वो कह रहे कि जो हरि नाम जहाँ पर भी होता है, वो कह रहे बेस्ट प्लेस टू थ्रो अवे डिप्रेशन। डिप्रेशन अगर हो रहा है तुम्हारे को बहुत ज़्यादा, तो तुम क्या करो, जहाँ पर कीर्तन चल रहा है वहाँ पर चले जाओ, तुम्हारा सारा डिप्रेशन सब वहाँ पर समाप्त होगा। तो ये चीज़ समझ आती तो लोगों को इसके साथ में रिलेट कर पाते। बाकी ब्रह्मा जप कर रहा है, शिव कर रहा है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए बहुत सारे भक्तों को बहुत एक अलग लेवल पर जाकर के लोगों को क्या करना पड़ रहा है, ये चीज़ें समझानी पड़ रही। बहुत सारे लोग हमारे भक्त अलग अलग स्थानों के ही सभी, वो क्या लिखते हैं, डिप्रेशन को दूर करने का उपाय हमारे पास आओ सीखो, एंग्जाइटी को दूर करने का उपाय हमारे पास आओ और सीखो, अगर सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है उसके ऐसी वाली चीज़ को दूर करने के लिए हमारे पास आओ, हम आपको उसके लिए साउंड वाइब्रेशन जो है थेरेपी कराएंगे। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं नए लोगों के लिए इंट्रोड्यूस करना पड़ता। क्यों? क्योंकि उनका स्तर जो है कैसे वाला है, बहुत अलग। उनको इससे कोई लेना देना नहीं, जो आपका ब्रह्मा जी क्या कर रहा, शिव जी क्या कर रहा, करते रहो जो करते हैं। चलो लो प्रसाद क्या दोगे भरत प्रभु? सबको
है।